بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آپ سب کا کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر۔ بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، کورونا وائرس کی وبا ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ اس بیماری سے بچنے کے لیے ہمیں گھر پر رہنا ہے اور صابن سے بار بار اچھی طرح سے اپنے ہاتھ دھونے ہیں۔ صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اس بیماری سے محفوظ رکھے، آمین۔ بچوں، کل ہم نے تصویری وضاحت کی دہرائی کی تھی۔ آپ سب نے اس سبق کو دہرایا ہے؟ شاباش۔ اور ہوم ورک بھی سب نکال لیا ہے؟ ویری گڈ۔ پیارے بچوں، آج ہم پڑھائیں گے قواعد میں سے اسم کی تعریف اور اس کی مثالیں پڑھیں گے۔ مثالوں کے ذریعے سے ہم اس کی پہچان سیکھیں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے اسم کی تعریف اور اس کی مثالیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے بچوں، کون بتائے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب بچے ایک بار پڑھیں۔ کیا پڑھیں گے ہم؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاباش بچوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا اپنی عادت بنا لیں۔ ہر اچھا کام کرنے سے پہلے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنی چاہیے۔ اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے کام میں برکت ڈالتے ہیں اور ہمارا کام بھی خیریت سے پورا ہو جاتا ہے۔ بچوں، آج ہم پڑھیں گے اسم کی تعریف۔ تو اب سبق کی طرف آئیں۔ اسم کی تعریف اور مثالیں۔ اسم کی تعریف کسی شخص، چیز، جگہ، پرندے یا جانور کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ بچوں، یہ سبق ہم نے چھٹیوں سے پہلے پڑھا تھا۔ آپ سب نے اس کو یاد کیا ہے؟ شاباش۔ آج ہم اس سبق کی دہرائی کر رہے ہیں، اس لیے میں آپ کو ایک دفعہ ریوائز اس کو کروا رہی ہوں اور آپ سب نے مجھے پھر سنانا ہے۔ مثالیں جب میں پوچھوں گی اس کی تو آپ سب نے مجھے بتانا ہے۔ اچھا جی، اب ہم پڑھیں گے اس کی مثالیں۔ مثالوں کے ذریعے سے اسم کی پہچان۔ نمبر 1، شخص کا نام۔ شخص کا نام سے مراد ہے بچوں انسان کا نام، جیسے حوریہ، آمنہ، حماد اور احمد۔ جتنے بھی نام ہوتے ہیں وہ سب شخص کے نام میں آتے ہیں۔ نمبر 2، چیز کا نام۔ چیز کا نام میں کتاب، کرسی، پھول، پانی اور میز۔ نمبر 3، جگہ کا نام۔ جگہ کے نام سے بچوں مراد ہے کہ جہاں پر ہم رہتے ہیں، ہمارے ارد گرد کے جو شہر ہوتے ہیں وہ کچھ حصوں میں تقسیم ہوئے ہوتے ہیں اور ہر جگہ کا ایک نام ہوتا ہے۔ جیسے میں آپ کے سامنے کچھ پاکستان کے شہروں کے نام بتا رہی ہوں۔ کراچی، لاہور، ملتان، یہ پاکستان کے شہر ہیں، اور عمان میں جہاں ہم رہتے ہیں یہ شہر مسقط ہے۔ اس کے ساتھ اور بھی بہت سے شہر ہیں جیسے وادی کبیر، مترا، امریہ وغیرہ۔ تو یہ سب جگہوں کے نام ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب ہم نمبر 4 پڑھیں گے۔ نمبر 4 پر ہے پرندے یا جانور کا نام۔ پرندوں میں نام ہوتے ہیں چڑیا، طوطا، کوا وغیرہ، اور جانوروں میں نام ہیں شیر، ہاتھی اور بھی بہت سے جانوروں کے نام ہیں جیسے بندر، بکری، اور یہ تصویر میں دیکھیں آپ ہاتھی اور یہ زیبرا، اور اسی طرح سے بہت سے جانوروں کے نام ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب اسم میں پائے جاتے ہیں۔ آگے ہم پڑھیں گے سوال نمبر 2۔ دیے گئے الفاظ میں سے اسم ڈھونڈ کر ان پر دائرہ لگائیں۔ بچوں، یہ کچھ الفاظ ہیں، میں ان کو پہلے پڑھتی ہوں، آپ میرے ساتھ پڑھیں نے۔ سیب، بات، سب، بکری، خوش، فاخر، مسکت، تیز، بوتل، آئیں، وجہ،
ईमान, दरवाजा, जाना, आहिस्ता, कौवा, मिलजुल, लाहौर, जब, शेर। अच्छा जी, आपने सारे ये वर्ड्स पढ़ लिए, अल्फाज पढ़ लिए। अब हम इनमें ये देखेंगे कि इन अल्फाज में से कौन से लफ्ज हैं जो इसम हैं और कौन से लफ्ज जो हैं वो इसम नहीं हैं। जो लफ्ज इसम होंगे हम उन्हें पढ़ते साथ ही समझ जाएंगे कि कौन सा लफ्ज इसम है और हम इसम पर दायरा लगाते जाएंगे। ठीक है बच्चों। अब सेब, सेब देखें, किसी का नाम है, किसी चीज का नाम है। जी, सेब किसी चीज का नाम है, तो सेब पर हम दायरा लगाएंगे। सेब एक चीज है, ये इसम है। बात, बात क्या नाम होती है या जगह का नाम है या किसी और चीज का? नहीं, इसलिए हम इसे छोड़ देंगे। सब, सब नाम है या कोई परिंदा है या कुछ और है? नहीं। शाबाश। बकरी, बकरी क्या है? शाबाश, बकरी आपने बहुत जल्दी बता दिया है। बकरी एक जानवर का नाम है। शाबाश, ये भी इसम में है, इस पर भी हम दायरा लगाएंगे। खुश, खुश बच्चों ये क्या होगा? इसम में आएगा या नहीं? नहीं। शाबाश। आगे है फाखिर, फाखिर, जी फाखिर एक नाम है, इसलिए हम इस पर भी दायरा लगाएंगे, ये भी इसम है। मस्कत, शाबाश बच्चों, ये तो आपने बहुत जल्दी से बता दिया है। मस्कत एक जगह का नाम है, ये भी इसम है, इस पर भी हम दायरा लगाएंगे। जी बच्चों, हमारा अगला लफ्ज है तेज। तेज आप मुझे बताएं कि ये नाम है किसी का या किसी जगह का नाम है या किसी परिंदे का नाम है? तो कुछ भी नहीं है जी, तो अब हम इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये इसम नहीं है, हम इस पर दायरा नहीं लगाएंगे। अगला लफ्ज है बोतल। बच्चों तो ये किसने बताया अभी जल्दी से? जी हाँ, ये इसम है। शाबाश, ये एक चीज का नाम है। अगला लफ्ज देखें, आए। आए बच्चों किसी का नाम है या किसी जगह का नाम है? कुछ भी नहीं है। शाबाश, इसको भी हम छोड़ देंगे, इस पर भी हम दायरा नहीं लगाएंगे। अगला लफ्ज क्या है? वजह, तो ये भी इसम नहीं है। उसके बाद हमारा अगला लफ्ज है ईमान। कौन बताएगा बच्चों कि ये इसम है या नहीं, या ये क्या है? नाम है, चीज है, जगह है? शाबाश, ईमान नाम है और ये इसम है। बच्चों इस पर भी आप दायरा लगाएं। शाबाश। हमारा अगला लफ्ज है दरवाजा। जी शाबाश, जल्दी से आपने ये बता दिया है मुझे। लेकिन बच्चों मुझे ये तो बताएं कि दरवाजा है क्या? नाम है या जगह है, क्या है? चीज है। शाबाश, ये भी इसम है, इस पर भी हम क्या करेंगे? दायरा लगाएंगे। शाबाश। आगे है जाना। जाना क्या है? इसम है या नहीं है? नहीं है जी, इसको भी छोड़ दें। अगला लफ्ज है आहिस्ता। आहिस्ता बच्चों कोई नाम या चीज, जगह कुछ है? जल्दी से सोच के बताएं। अच्छा, ये सब नहीं है। शाबाश। अगला लफ्ज क्या है? कौवा। कौवा बच्चों किसी का नाम होता है या जगह का नाम है या किसी चीज का नाम है? जी, कौवा एक परिंदे का नाम है। शाबाश। और ये क्या होगा? इसम। इस पर हम क्या करेंगे? दायरा लगाएंगे। मिलजुल कर। मिलजुल कर क्या है? जी, ये इसम नहीं है। अगला लफ्ज है लाहौर। लाहौर बच्चों क्या है? नाम है, जगह, चीज या किसी परिंदे का नाम है? लाहौर एक जगह का नाम है। शाबाश। ये लाहौर जो है पाकिस्तान का एक शहर है। जी, बहुत से बच्चे लाहौर के रहने वाले हैं। जो लाहौर के रहने वाले हैं उन्होंने जल्दी से बता दिया है कि लाहौर एक जगह का नाम है। हम इस पर क्या करेंगे? दायरा लगाएंगे। ये भी इसम है, ये एक जगह का नाम है।
अगला क्या लफ्ज है? जब। जी बच्चों, जब क्या है? अच्छा, जब इसम नहीं है। ठीक, उससे अगला लफ्ज क्या है? शेर। शेर क्या है? शाबाश, शेर एक जानवर का नाम है और ये इसम है। हम इस पर क्या करेंगे? दायरा लगाएंगे। शाबाश बच्चों, प्यारे बच्चों। अब हम सवाल नंबर 3 करेंगे। सवाल नंबर 3 है, दिए गए जुमलों में से इसम ढूंढकर इन पर दायरा लगाएं। अहमद कंप्यूटर पर काम कर रहा है। प्यारे बच्चों, आपने अहमद कंप्यूटर पर काम कर रहा है, इसमें से आपने ढूंढना है कि इसम क्या है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। मैं इसलिए आपको बार बार ये लफ्ज पढ़ के बता रही हूँ कि आप समझ जाएं कि ये लफ्ज क्या लिखे हुए हैं। तो आपने इनको घर में अपनी नोटबुक पर इस काम को उतारना है और जो लफ्ज इसम है इसमें से उस पर दायरा लगाना है। अगला लफ्ज है मेज। नंबर 2 जुमला है, मेज पर किताब और कलम है। तो इसमें से जो लफ्ज इसम होंगे उन पर आपने दायरा लगाना है। ये 2 जुमले हैं, ये आपके लिए मैं दे रही हूँ, मैं आपको टेस्ट के तौर पे दे रही हूँ कि मैं आपको चेक करूँ कि कौन से बच्चों को अच्छी तरह से समझ आ गया है। तो आपका ये होमवर्क है, आपने इस काम को अच्छे से करना है। ठीक है बच्चों, समझ आ गई है ना आपको आज इसम की? शाबाश, हमने इसको दूसरी दफा आज पढ़ा है। आज हमने इसकी दोहराई की है। आप सब बच्चों ने बहुत अच्छे से जवाब दिए हैं। शाबाश, इसका मतलब है सब बच्चों ने छुट्टियों में अच्छे से पढ़ा है। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।